الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سورہ ہود آیت نمبر 28 لیکچر نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے پھر وہ آپ کو نہ سوچتی وہ رحمت کیا ہم اس کو تم سے موڑ سکتے ہیں. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ اور تم اس سے نفرت کیے جا رہے ہو. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کچھ مال تو نہیں مانگتا. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا میرا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور میں تو ایمان والوں کو نکالتا نہیں ہوں. إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ یہ لوگ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں لیکن واقعی میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جہالت کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اور اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو مجھے اللہ کی گرفت سے کون بچا لے گا. کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے تمام خزانے ہیں اور نہ میں تمہارے سے غیب کی باتیں کرتا ہوں اور نہ میں تمام غیب کی باتیں جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہوں میں ان کی نسبت تمہاری طرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ثواب نہ دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین ان کے دل میں جو کچھ ہے اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے میں تو اگر ایسی بات کہہ دوں تو اس صورت میں ظالم ہوں. کیونکہ گزشتہ آیات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار سرداروں کا قول نقل کیا گیا تھا جنہوں نے نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا بلکہ ان پر بہت سارے اعتراضات بھی کیے اور 3 شکوک تھے جو انہوں نے ان پہ کیے. اب ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا جواب بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کافر سرداروں سے جواب میں فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں پھر مجھے اللہ نے رسول کیوں بنایا. تو بے شک یہ بات ٹھیک ہے کہ میں انسان ہوں مگر انسان ہونا نبوت و رسالت کے خلاف نہیں ہے. بے شک مجھے نبوت کا کوئی ذاتی استحقاق نہیں لیکن یہ اللہ کی رحمت اور عنایت ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے. اسی لیے اللہ نے مجھے راہ راست دکھائی ہے معجزات و نبوت عطا کیے ہیں پس میں اللہ کی طرف سے اپنی نبوت و رسالت کے روشن دلائل لے کر آیا ہوں. آپ کو کھلا ہوا سیدھا راستہ معجزات بھی نہ سوجیں تو اس میں معجزات دیکھ کر بھی آپ لوگ ایمان نہ لائیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے. میں زبردستی حقانیت اور سیدھا رستہ آپ لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال سکتا. رہی یہ بات کہ شاید تم یہ خیال کر رہے ہو کہ میں نبوت و ہدایت کا دعویٰ کر کے تمہارا مال و دولت چھین لوں گا اور مالدار بننا چاہوں گا تو یاد رکھو کہ میں بالکل بھی تم سے مال لینے والا نہیں ہوں. میں تم سے کسی قسم کا معاوضہ بھی نہیں چاہتا. میں تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں اور اسی سے اجر کا طالب ہوں. اور تم یہ جو کہتے ہو کہ غریب اور کمزور طبقہ جو ہے اس نے میرا ساتھ دیا اور وہی میرے ساتھ ہیں اور تم ان سے ملنا اور ان کے پاس بیٹھنا
छोड़ दो, हम ये बात दोबारा नहीं करते, तो ये लोग मोमन हो गए, मेरी रिसालत का इन्होंने इनकार कर दिया है और पिछले तमाम अकायद छोड़ दिए हैं और मेरे ग्रुप में शामिल हो गए, तो ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, इनको मैं किसी तरह से अपने पास से नहीं हटा सकता। अगर आप इस चीज के ख्वाहिशमंद हैं तो ये आपकी ख्वाहिश ही हो सकती है। और अगर मैं इन लोगों को अपने पास से हटा दूं और इनके साथ मैं ऐसा मामला करूं तो ये भी इंसाफी है और मैं जालिम हूंगा अगर मैं ऐसा करूंगा। और ये अल्लाह के बेहद मुखलिस बंदे हैं और मैं बेइंसाफी नहीं कर सकता। खुदा ना खास्ता अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे अल्लाह की गिरफ्त से कौन बचा सकेगा। मैं तो अल्लाह के दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। और ये अल्लाह के खालिस, ये जो गरीब लोग हैं ये अल्लाह ताला के इखलास और खालिस बंदे हैं और अल्लाह ताला पर अताअत करते हैं, अल्लाह पर ईमान लेके आए हैं और मैं कभी भी इनके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। قالوا يا نوح قد جادلتنا। वो कहने लगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, قالوا يا نوح قد جادلتنا, और वो कहने लगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, तूने झगड़ा किया हमसे। फअक्सरत फअक्तरत, और बहुत लोगों ने जिदालना आपस में, फातिना हमसे झगड़ा किया, बिमा ताइदुना, वो जो हमसे वादा करता है, इन कुंता अगर तू है मिनस सादिकीन, सच्चों में से। वो लोग कहने लगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, हम आपसे बहस कर चुके, आप भी हमसे बहुत बहस कर चुके, सो जिस चीज से आप हमें धमकाते हैं वो हमारे सामने ले आओ। मीन्स कि वो अजाब की बात कर रहे थे ना, कि आप अगर अजाब की बात करते हैं तो वो अजाब हमारे सामने ले आओ अगर आप सच्चे हो। قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला इसको बशर्ते मंजूर करेगा और आपके सामने भी ले आएगा, और इस वक्त तुम आजिज आ जाओगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। वला यनफउकुम नुस्ही इन अरदतु अन अनसह लकुम इन कान अल्लाह युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन। और मेरी खैर खाही तुम्हारे काम नहीं आ सकते, गोया कि मैं कितना ही आपका खैर खा बनना चाहूं, जबकि अल्लाह ही को आपका गुमराह करना मंजूर हो, वही आपका मालिक है और आप सबको उसी के पास लौट कर जाना है। अम यकूलून इफ्तरा, क्या ये लोग कहते हैं या फिर ये झूठ बोलते हैं। अम यकूलून, क्या ये कहते हैं अफ्तरा, बना लाया है, खुद से घर लाया, खुद से झूठ बोला है, माअज़ल्लाह। कुल कह दीजिए, इन इफ्तरैतुहु, अगर इसने खुद से बनाया है, फ़अलैया, तो मुझ पर, इजरामी, मेरा गुनाह है, व अना, और मैं बरीउन, इससे बरी जमा हूं, मिम्मा, इससे जो तुजरिमून, तुम गुनाह करते हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कब्ल तूफान 9.5 बरस अपनी कौम में रहे, करीबन 9 या 9.5 ईयर्स का टाइम था जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान रहे, तूफान से पहले पहले। सुबह शाम उन्हें नसीहत करते रहते, हर जो जो वो सवाल उठाते, जिस जिस चीज के बारे में सवाल करते, आप हर चीज का जवाब देते, उन्हें तबलीग करते, उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करते। इंतहाई कोशिश के बावजूद बदबख्त कौम समझ ना सकी, बल्कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप अक्सर हमें डराते हैं, आप तो हमें कहते हैं कि अजाब आ जाएगा, अल्लाह आपसे खफा हो जाएगा, अल्लाह आपसे नाराज हो जाएगा, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने रब से कहिए कि वो उस अजाब को ले आए। उन्होंने कहा कि कद जादलतना तो अक्सर जिदालना, आप भी हमसे झगड़ते हैं, आपने भी हमसे बहुत बहस कर ली, हमने भी आपसे बहुत बहस कर ली, और अब हम चाहते हैं कि दो टोक बात करें, अब ये धमकियों का ये सिलसिला बंद कीजिए। माअज़ल्लाह, उनको लग रहा था कि शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जस्ट उनको धमकियां दे रहे हैं अजाब की। उन्होंने कहा, ठीक है, आपके रब की तरफ से जो अजाब आना है उसको ले आइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि ये चीज मेरे कब्जा में नहीं है, अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक जब अजाब को लेकर आना चाहेगा, जब अजाब को नाजिल करना चाहेगा, वो आपके ऊपर नाजिल कर देगा। मेरा फर्ज जस्ट आपको आगाह करना था, मेरा फर्ज फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मेरा काम आप तक पहुंचा देना था, मेरा काम आपको आगाह करना था। बाकी अजाब का लाना ना लाना ये अल्लाह ताला की कुदरत है, वो जब चाहे आप पर अजाब नाजिल कर देगा, फिर ऐसा होगा कि आप भाग कर कहीं पनाह नहीं ले सकोगे। और ऐसा कौन है
जो माज़अल्लाह अल्लाह को थका कर आजिज कर दे, माज़अल्लाह कोई भी ऐसा नहीं कर सकेगा। और इसलिए आप अगर बेबाकी इख्तियार कर रहे हो, आपको लगता है कि अजाब तो आएगा ही नहीं, तो एक दिन जब अचानक आप पर अजाब आएगा, आप खड़े होंगे, बैठे होंगे, अपने कामों में मशगूल होंगे, आप खुशगपियों में मशगूल होंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से अचानक अजाब आ जाएगा और आप सबको मौका भी नहीं मिलेगा, मोहलत भी नहीं मिलेगी कि वहां से हट ही सको। और वही है जो सबके अमाल की जज़ा और सजा देने वाला है। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ اور नूह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी गई कि सो उनके जो ईमान ला चुके हैं उन पर, और कोई नया शख्स जो कौम में ईमान लाने वाला ना हो, सो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ईमान लाने वाले नहीं, इस पर आप कुछ गम न कीजिए। वस्नइल फुल्क बिअयुनिना ववहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। और तुम हमारी निगरानी में हमारे हुक्म से कश्ती तैयार कर लो, और मुझसे काफरों के बारे में कुछ गुफ्तगू न करना, वो सब के सब गर्क कर दिए जाएंगे। इन्नहुम मुग़रक़ून, और इन सब को गर्क कर दिया जाएगा जो नाफरमान है, जो नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान रहे, उन सबको अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, फला तुखातिबनी ववहयिना, उनकी तरफ वही भेजी गई। क्या आपने एक कश्ती को बनाना है, वस्नइल फुल्का, उनको कश्ती बनाने का हुक्म दे दिया गया कि अब इनमें से अब मेरे से बात नहीं कीजिएगा कि जालिमों को थोड़ी सी छूट दे दी जाए। जालिमों को छूट नहीं दे दी जाएगी, बल्कि इन्हें जो जो नाफरमान हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो, सबको गर्क किया जाएगा। वयस्नउल फुल्क, और कश्ती तैयार करने लगे, और वो कश्ती तैयार करने लगे, कश्ती तैयार होने लगी। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहुम, और जब कभी उनकी कौम में किसी रईस का वहां से गुजर होता तो वो उनसे हंसी करते, उनका मजाक उड़ाते। सखिरू मिनहुम, वो मजाक उड़ाते कि ये लोग तो पागल है माअज़ल्लाह, कि ये कश्ती बना रहे हैं, हालांकि कहीं भी यहाँ पे तो बारिश का दूर दूर तक, पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, यहाँ पे तो कोई ऐसे तालाब नहीं है, बल्कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं माअज़ल्लाह। जब भी वो वहां से पास से गुजरते तो वो मजाक उड़ाना शुरू करते। क़ाल इन तस्खरू मिन्हा फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। आप फरमाते हैं कि अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम तुम पर हंसते हैं जैसा कि तुम हम पर हंसते हो। सो अभी मालूम हो जाता है, फसौफ तअलमूना, सो अभी मालूम हो जाता है, मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, कि वो कौन शख्स है जिस पर ऐसा अजाब आए कि वो उसको रुसवा कर दे और उस पर दायमी अजाब नाजिल होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में मबरूस हुए और नबूवत से सरफराज फरमाए गए, और करीबन 950 साल, जैसे कि पारा नंबर 20वें पारे में सूरह अनकबूत में भी इसकी तसरीफ फरमाई गई है कि उन्होंने दावत ईमानी दी, तबलीग की, और फिर लोगों की इस्लाह में मसरूफ रहे। फिर तूफान आया, तूफान के बाद करीबन 60 साल तक जिंदा रहे। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र करीबन उम्र मुबारक करीबन बताई जाती है 1050 साल तक। तो इस तवील मुद्दत में आप बराबर अपनी कौम को दीन हक और कलमा तौहीद की दावत देते रहे। कौम की एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, दूसरी के बाद तीसरी नस्ल, वो इस उम्मीद पर दावत देते रहे दिन रात कि शायद ये लोग हक को कबूल कर ले। जब इस अमल पर सदियां गुजर गई, कौम ने आपको तंग करना शुरू कर दिया, टीज करना शुरू कर दिया, जुल्म करना शुरू कर दिया, आपको दीवाना और मजनून कहना शुरू कर दिया, आप कभी आप पर पत्थर बरसाते, यहाँ तक कि आप बेहोश हो जाते। जब नौबत यहाँ तक पहुंच गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की। अ, इन्नी मगलूबुन फंतसिर, जो कि सूरह कमर में बयान किया गया है ना, इन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि मैं मगलूब और ज़ईफ हूँ, आप इनसे बदला लीजिए, आप इनसे बदला ले लीजिए। और दुआ की, क़ाल रब्बि इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, जो कि सूरह मोमिन में पारा नंबर जो 18 है, उसमें सूरह मोमिन में मुमिनून, सॉरी सूरह मुमिनून है, मोमिन नहीं है, ठीक है। तो सूरह मोमिन तो फमन असलम पारे में है ना। तो इसमें उन्होंने सूरह मुमिनून में कहा था, क़ाल रब्बि इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून, ए मेरे परवरदिगार, इनकी तकज़ीब के बिलमुक़ाबिल आप मेरी मदद कीजिए। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जो खिताब फरमाया गया वो आयात में जिक्र फरमाया गया है। और बताया जाता है कि अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, जिन गिने चुने अफराद की किस्मत में ईमान लाना था वो ला चुके,
अब कोई शख्स इनमें ईमान लाने वाला नहीं है, लिहाजा अब आप इनके लिए गमगीन ना हो कि ये ईमान लाएंगे या नहीं लाएंगे। अनकरीब अल्लाह ताला की तरफ से इन पर अजाब नाजिल होगा, इनकी शरारतों और शरीरों का खात्मा कर दिया जाएगा। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अनकरीब पानी का एक बहुत सख्त तूफान आने वाला है, जिससे आप सब लोग गर्क हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इनको बता दिया था कि इन सब लोगों को हलाक कर दिया जाएगा और फैसला होकर रहेगा। तो आपने जब उनसे कहना शुरू किया तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि वस्ना कश्ती तैयार कीजिए, बिअयुनिना हमारे हुक्म से कश्ती तैयार कीजिए, वही भेजी गई कश्ती तैयार कर लीजिए। वयस्नाउल फुल्क कश्ती रेडी होना शुरू हो गई। जब कश्ती तैयार होना शुरू हुई, उन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे कोई भी ग्रुप पास से गुजरता तो कोई रईस या वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते, ऐसे कहते कि ये कौन लोग हैं। जब उन्होंने हुक्म की तामील की, कश्ती बनाना शुरू की, और रवायत में है कि जिब्राइल अमीन बजरिया वही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती की तमाम जरूरियात प्रोवाइड कर रहे थे। जिस जो जो चीजें उसमें यूज हो रही थी, लकड़ी यूज हो रही थी उसमें, कील यूज हो रहे थे उसमें, जो जो चीजें यूज हो रही थी ना, तो वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको प्रोवाइड कर रहे थे। और साथ साथ उनको, क्योंकि वो कश्ती बनाने का तरीका नहीं जानते थे, तो इसलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको कश्ती बनाने का तरीका बताया कि यहाँ पे पहली मंजिल बनाए, दूसरी मंजिल बनाए। इनके उन्होंने बताया कि आपने पोर्शन बनाने हैं, इस पोर्शन में जानवर रखे जाएंगे, इसमें परिंदे रखे जाएंगे, इसमें इंसान रखे जाएंगे। मीन्स कि सब एक एक जोड़ा रख लिया गया था ना, हर हर जानवर का, जानदार हैं, परिंदे हैं, कोई भी चीज थी, सबका एक एक जोड़ा रख लिया गया था। तो ये उनकी जो डिवीजन थी, पार्टीशन थी, वो भी उनको जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बजरिए वही सिखाई। जिब्राइल अल्लाह ताला ने उनको बजरिए वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से बताया। और बाज रवायत में ये भी है कि कश्ती कई साल में तैयार हुई, और बस कश्ती नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ा जहाज था, जिसमें अलग अलग उसमें वो बने हुए थे, कैबन्स बने हुए थे, अलग अलग उसमें दर्जे बने हुए थे। और बाज तारीखी रवायात में इसकी पैमाइश ये बताई जाती है कि ये 300 गज लंबी थी, 50 गज चौड़ी थी, और 30 गज इसकी ऊंचाई थी। और इसमें फ्लोर्स बने हुए थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मीन्स कि 3 फ्लोर या 3 या 4 फ्लोर्स की बात की जाती है कि 3 या 4 मंजिलें थी। और बहुत मतलब बड़ी कश्ती थी। और रवायात में ये भी है कि इंसान के लिए जितनी सनतों की जरूरत थी, इन सब की इब्तिदा बजरिए वही किसी पैगंबर के जरिए अमल में आई है। कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जरिए से बताया गया कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो तलवारें बनाया करते थे। जैसे ही उनके हाथ में आता, क्या लोहा जिसको बोलते हैं ना, सॉरी, लोहा जैसे उनके हाथ में आता तो वो पिघल जाया करता था, उनको किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो ऐसे हाथों में लोहे को लेते, उससे तलवारें बनाते, उससे जो कुछ बनाना चाहते, मोम बनाना चाहते, उसको बना लिया करते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज दी थी कि अभी भी जब कोई खूबसूरत आवाज की बात हो रही होती है ना, तो बोलते हैं दाऊदे लहनी, लहने दाऊदी। मीन्स के लहन, जो उनका ना आवाज, इतनी प्यारी उनकी आवाज थी, सुभान अल्लाह, कि जब वो तिलावत किया करते तौरात की, तो परिंदे जो थे खामोश हो जाया करते थे, ऐसे सुकूत तारी हो जाता, ऐसे जैसे कि एकदम हर चीज रुक जाती है। इवन परिंदे भी खामोश हो जाया करते थे, चहकना बंद कर देते, बोलना बंद कर देते, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा था। मीन्स बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज की जो बताया है, हमें कारीगरी बता दी है, वो किसी न किसी नबी के जरिए से बता दी गई है। अगर आज साइंटिस्ट कहते हैं कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये सब कुछ इस्लाम और अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से, ये पहले ही हम तक सब कुछ पहुंच चुका है। तो फिर हम बात कर रहे थे उस कश्ती की जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाई। तो फिर जब वो जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा, वो बनती गई और अच्छी, मतलब काफी ये है कि काफी उसको साल लग गए थे बनने में, कई साल के बाद वो कश्ती तैयार हो गई। जब अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मशगूल थे, तो कौम के काफिर सरदार जब उधर से गुजरते तो हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते, कहते कि वाह, पैगंबर तो बड़े ही बन गए माजल्लाह।
کبھی ایک عجیب سی چیز دیکھ کر نوح علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ پانی کا طوفان آنے والا ہے، ایک گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا اور پانی میں ڈوبنے سے بچائے گا۔ تو یہ سن کر وہ اتنا ہنستے مذاق کرتے کہ ہمارے ارد گرد تو ایسا پانی کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، چونکہ اس سے پہلے کشتی لوگوں نے دیکھی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے استعمال کے طریقے سے واقف تھے، اس لیے تعجب کرتے، حیران ہوتے، سرپرائز ہوتے، کہکے لگاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں فرماتے کہ آج اگر آپ ہم پہ ہنس رہے ہو، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ اگر آج آپ ہم پہ ہنس رہے ہو تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہم بھی ہنسنے والے ہوں گے آپ لوگوں پہ۔ آپ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا ہم سیف ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ وقت قریب ہے جب تمہاری حماقت پر ہمیں ہنسنے کا موقع ملے گا، کہ جب تم اپنے جرائم کی پاداش میں سزا یاب ہو جاؤ گے۔ اب زیادہ اس میں ٹائم نہیں ہے، جلد ہی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائمی عذاب ہوگا۔ غرض یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے، سوال و جواب اور ان لوگوں کے مذاق اڑانے کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق عذاب کا ٹائم آ پہنچا۔ ہاں جی، باقی انشاءاللہ ابھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے، تو باقی انشاءاللہ جو ان کی ڈیٹیلڈ سٹوری ہے وہ کل ہم ڈسکس کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی دولت سے نواز کر اپنے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا شمار اپنے مومنین صادقین بندوں میں شامل فرمائے، ہمارا جینا اور مرنا ایمان پر ہی فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کی برکت سے ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لیکچر نمبر 5، پارٹ 2۔ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور زمین نے پانی نکالنا شروع کیا یا زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، ہم نے فرمایا ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ جانور رکھ لیجئے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے جس حکم پر نافذ ہو چکا ہے۔ اور دوسرے ایمان والوں میں اور بہت کم آدمی تھے جو کہ ان کے ساتھ تھے، اور کوئی باقی ایمان لانے والا نہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ طوفان آ گیا ہے۔ یہاں آیت میں وفارت تنور فرمایا گیا، یعنی جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہاں پہ تنور کی بات کی جا رہی ہے، وفارت تنور، جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان سے کہا تھا کہ جب تنور سے آپ کے گھر میں جس میں آپ کھانا وغیرہ بناتے ہیں اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ تو اس جگہ لفظ تنور کے معنی مفسرین نے مختلف، اس میں اختلافات بھی ہیں۔ بعض کے مطابق روٹی پکانے والا تنور اس سے مراد لیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ ایک تنور حضرت حوا سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، اور وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان ٹھہرایا گیا تھا کہ جب اس سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ طوفان شروع ہو گئے، پھر آپ نے کشتی میں سوار ہو جانا ہے۔ بعض نے کہا ہے، بعض مفسرین کے اکارڈنگ، کہ تنور کوئی خاص قسم کا چشمہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ تنور کے معنی سطح زمین کے ہیں، کہ جب سطح زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ اور الغرض کہا گیا
کہ ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا رکھ لیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور طوفان کی ابتدا ہوئی، روٹی پکانے کے تنور سے جہاں آگ بھری ہوئی ہوتی ہے، پانی ابل پڑا تو اوپر سے بادلوں کو حکم دیا گیا کہ پانی برسانا شروع کریں۔ نیچے زمین کی سطح سے چشموں کی طرح جوش مار کر پانی نکلنے لگا۔ جب پانی ابلنا شروع ہوا، جیسے کہ بوائلنگ پوائنٹ پہ پانی ہوتا ہے نا، تو ایسے وہ اچھل رہا ہوتا ہے، ایسے وہ بوائل ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے زمین سے پانی نکل رہا تھا جیسے بوائل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ہوا کہ جن جانوروں کی ضرورت ہے اور جن کی نسل باقی رہنی مقصود ہے، ان میں سے ایک ایک جوڑا نر کا لے لیجیے اور ایک ایک مادہ کا لے کر کشتی پر سوار ہو جائیے۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام میں ساری دنیا بھر کے جانور جمع نہیں کیے گئے تھے، بلکہ صرف وہ جانور جو نر و مادہ کے جوڑے رکھے گئے ہیں جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو پانی میں زندہ رہ سکتے تھے، لائک جو بھی آبی جانور ہیں، مچھلی وغیرہ، ان کو نہیں رکھا گیا تھا۔ باقی جو خشکی پر رہنے والے جانور ہیں نا، انہیں کو وہاں پہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے تمام دریائی جانور اس سے نکل گئے اور خشکی کے جانور بھی اس میں رکھ لیے گئے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی حشرات الارض ہے وہ بھی سارے نکل گئے۔ اگر جتنی خشکی کے جانور تھے ان کا حکم ہوا کہ وہ کشتی پر سوار کر لیے جائیں، اور ساتھ ہی نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو کشتی پر سوار کر لیں، جن کی تعداد بہت کم تھی۔ کشتی میں سوار ہونے والے مومنین کم و بیش جسٹ 80 تھے، 80 ان کی تعداد تھی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس، اور آپ کی 3 بیٹیاں بھی آپ کی 3 بیویاں بھی شامل تھیں۔ چوتھا بیٹا یان، جس کا لقب کنان تھا، وہ کفار کے ساتھ رہ کر طوفان میں غرق ہو گیا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اسی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اسی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام ہے۔ بالیقین میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنا شروع ہوئی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو پکارا، اور وہ علیحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے بیٹے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اور وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور مجھے وہ پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ جب میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا اور میں پانی میں غرق نہیں ہوں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا آپ کو نہیں ہے، لیکن جس پر وہ رحم کرے وہی بچ سکتا ہے، اور دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، بس وہ غرق ہو گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا قوم الظالمين۔ اور حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نکل جا، ان کو حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جا، اور اے آسمان اب تھم جا، اور پانی گھٹ گیا، قصہ ختم ہوا، اور کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہو گئے۔ بعدل للقوم الظالمین، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ لوگ رحمت سے دور ہو گئے۔ کیونکہ گزشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس میں مومنین کو سوار کر لیا جائے تاکہ طوفان سے وہ بچ جائیں، جس میں دوسرے سب کفار غرق ہو کر ہلاک کیے گئے تھے۔
चनाचे जब कश्ती तैयार हो गई और पानी जमीन से उबलना शुरू हुआ, तूफान की इब्तिदा हुई, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को, जिनके तादाद में इख्तलाफ है, ज्यादा तादाद 80 के करीब लिखी गई है कि उनकी 80 तादाद थी, उनको फरमाया कि आप अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का नाम लेकर कश्ती पर सवार हो जाएं और तूफान की कोई फिक्र ना करें। इस कश्ती का चलना और ठहरना सब अल्लाह के हुक्म से है और इसी के नाम के बरकत से है। आप गर्क नहीं होंगे इसके अंदर, निजात का दारोमदार उसी की रहमत पर है। ये कश्ती इसका ज़ाहरी सबब है, लिहाजा भरोसा आपने अल्लाह ही पे रखना है, ना कि कश्ती पर। मेरा परवरदिगार मोमिनीन की कोताहियों को माफ करने वाला और उन पर बेहद मेहरबान है। वो अपने फजल से हमें सही सलामत उतारेगा। और कश्ती पर सवार होने की दुआ, उलमा किराम ने लिखा है कि इस आयत में वक़ाल अरकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये कश्ती पर चढ़ते हुए अगर आप पढ़ते हैं, हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए अमन की चीज जबकि कश्ती में सवार हों, इस आयत का पढ़ना अमन ही अमन है। अगर वो इस आयत को पढ़ लेंगे तो वो अमन में रहेंगे और अल्लाह ताला उनको बहिफाजत अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है आयत नंबर 40 से, सेकंड पार्ट, सॉरी आयत नंबर 41 से यहाँ तक ये स्टार्ट हो रही है। वक़ाल इरकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये अगली आयत कंप्लीट हो रही है 41, यहाँ तक ये कश्ती पर चढ़ने की दुआ है, कश्ती पर सवार होने की। अगर ये की कश्ती पहाड़ जैसी मौजों को चीरती फाड़ती बेखौफो कदर चलती जा रही थी। सवार होने के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान, जो कि अपने बड़े भाई और सारे कुंबे से किनारा होकर अलग होकर काफिरों की सोहबत में था, आवाज दी कि ए बेटा, आप इनको छोड़कर हमारे साथ हो जाओ, आप इस मुसीबत से बच जाओगे। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम इसे मोमन ख्याल करते थे, इसलिए आवाज दी और उनको लगता था कि शायद ये इस तूफान को देखकर पलट आए और क्या पता कि वक्ती तौर पर इनके दिल में ऐसी बात आ गई हो और ये काफिरों के साथ हो गए हों, लेकिन ये मोमिन हो। आपने जब उनको आवाज दी अपने बेटे कनान को, तो उन्होंने कनान जो थे उन्हें भी लग रहा था कि शायद ये मुझ पे थोड़ा रहम कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी मौजों का देखें, हम ये सोचते होते हैं ना कि हम कभी भी नहीं मर सकते, हालांकि हमें पता है कि जिंदगी और मौत वो हकीकत है, हमें जिंदगी का पता है, मौत का पता है, मौत बरहक है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द डेली हजारों अमवात होती हैं, हजारों हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार चले जाते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी हम 60-70 साल के या काफी एज के बाद जाके हमारी डेथ होगी। और हालांकि कब्रिस्तान में कभी भी ये नहीं लिखा होता कि वहां पे सिर्फ बूढ़े हजरात ही आएंगे, ये सिर्फ हमारी अपनी सोच है ना, शैतान ने हमारे जहन में ये डाल दिया होता है कि अभी बहुत टाइम है। उसको भी यही लगा कि अभी कौन सा मेरी मतलब डेथ का टाइम आ गया, हालांकि हम जितने मर्जी बीमार होंगे, जैसे भी हमें लग रहा होता है अभी नहीं हम मर सकते ना, तो उसको यही था कि मैं तो बच जाऊंगा। उसने कहा कि मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और जिस तरह मामूली सैलाब होते हैं और बाजू का जब बुलंदी पर चढ़ जाए तो आदमी अपनी जान बचा लेता है, उसने कहा कि मैं भी किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। चनाचे इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया कि मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे डूबने से बचा लेगा। और क्योंकि वो वक्त इब्तिदाई तूफान का था, अभी तूफान स्टार्ट हुआ था, उसको लग रहा था कि पानी इतना ज्यादा नहीं है और मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा तो इजीली बच जाऊंगा। पहाड़ों के ऊपर क्योंकि अभी पानी भी नहीं पहुंचा था, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके अहमकाना जवाब के बारे में फिर से कहा कि ये कोई मामूली सैलाब नहीं बल्कि अजाब इलाही का तूफान है। पहाड़ की क्या है हकीकत है, पहाड़ की क्या हैसियत है, कोई चीज आज अजाब से काफिरों को नहीं बचा सकती। हाँ, अल्लाह ही है जो किसी पर रहम करे तो वो बच सकता है, लेकिन अल्लाह तो आप लोगों से और मुजरिमों से इंतकाम ले रहा है आज के दिन, तो वो रहम कैसे करेगा। बाप बेटे की गुफ्तगू अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर आई, मौज आई जो कि दोनों के दरमियान में हाइल हो गई और हमेशा के लिए दोनों को जुदा कर दिया और कनान को गर्क कर दिया, जो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे थे। फिर एक मुद्दत तक इस कदर पानी बरसा के आसमान के इस तरह से लग रहा था कि दाने खुल गए हैं और जमीन के पर्दे फट गए हैं, दरख्त और पहाड़ों तक पानी पहाड़ और पहाड़ों की चोटियां तक पानी में डूब गई थी। असहाबे कश्ती के सिवा तमाम लोग जिनके हक में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदुआ की थी, सब गर्क हो गए। इस वक्त अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निकल जा और
बादल को हुक्म फरमाया कि थम जा, चनाचे पानी खुश्क होना शुरू हुआ। कश्ती जोदी पहाड़ पर जा लगी और बाज के नजदीक मोसिल में था, और जो काम अल्लाह ने चाहा यानी मुजरिमों को सजा देना वो पूरा हो चुका था, और जालिमों के हक में कह दिया गया कि अल्लाह की रहमत से दूर होके हमेशा के लिए यहाँ से दूर हो जाओ, रहमत से। और बाज तफासिर में ये भी है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम करीबन 10 माह रजब को कश्ती में सवार हुए थे, और 6 महीने तक ये कश्ती तूफान में पानी के ऊपर चलती रही। और जब बैतुल्लाह शरीफ के मुकाम पर पहुंची तो 7 मरतबा तवाफ किया। अल्लाह ताला ने अपने बैत को, घर को बुलंद करके गर्क होने से बचा लिया था। फिर 10 मुहर्रमुल हराम को योम आशूरा में तूफान खत्म होकर कश्ती जबले जोदी, जोदी पहाड़ पर जा ठहरी, जो कि अराक में मोसुल के करीब है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस रोज शुक्राने के तौर पर रोजा रखा, और कश्ती में जितने आदमी थे सबको रोजा रखने का हुक्म हुआ। और इसीलिए योम आशूरा में 10 मुहर्रमुल हराम को रोजा इसलिए भी रखा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के थमने पर भी रोजा रखा था। लेकिन हम, और इसके अलावा तौरात भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अनायत की गई थी, इसलिए भी रोजा रखा जाता है। और इसके अलावा हम वैसे भी मुसलमानों को हुक्म हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि हम उन लोगों की नकल नहीं करेंगे, यहूदियों की। हम 9 का भी रोजा रखेंगे और 10 का भी रोजा रखेंगे। फिर 9 और 10 का हुक्म हुआ मुसलमानों को कि आप 9 का भी साथ मिला लीजिए, लेकिन ये फर्ज नहीं है। रखेंगे तो सवाब होगा, नहीं रखेंगे तो गुनाह नहीं होगा। इसी तरह से फिर कहा गया कि आप 10 के साथ अगर 11 का रोजा मिला लेंगे, 2 रोजे रखने हैं, एक आपने सेपरेट रोजा नहीं रखना। तो फिर 10 मुहर्रम हराम को जब कश्ती जोधी पहाड़ पर ठहरी तो सबको रोजा रखने का हुक्म हुआ और सबने रोजा रखा। और ये भी बताया जाता है कि अहले कश्ती के अलावा कोई ऐसा जानदार नहीं था जो कि बच गया हो अजाब इलाही से। और बहुत सारी आयात से ये भी मालूम होता है कि वो तूफान आम नहीं था, और जानवरों में से जो एक एक कश्ती का जोड़ा रखा गया था वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि क्योंकि अगर तूफान आम ना होता तो जानवरों की सवार करने की क्या जरूरत थी, अल्लाह ताला ने उनको बचा लेना था। दूसरे मुकाम पर तो जानवर मौजूद ही थे। इस तूफान आम के बाद दुनिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल जारी हुई। इन्हें आदम सानी का टाइटल भी दिया गया, और इन्हें आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद, इस तूफान के बाद इन्हीं से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई थी। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी बोला जाता है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, सूरह नूह में, यानी ए मेरे परवरदिगार अब इन काफिरों में से कोई जमीन पर बसने वाला ना छोड़िएगा। ये भी दलील है कि तूफान तमाम अहले जमीन के लिए था। और इस जमाने में जहां तक दुनिया आबाद थी वहां तक तूफान आया, और इसमें सब लोग शामिल थे सिवाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान के, कि जो उनको मानने वाले थे, जो उनके फॉलोवर थे। सिर्फ वो लोग बच गए, बाकी सारी दुनिया में अजाब आया था, सारी दुनिया को गर्क के आग किया गया। और इसमें सिर्फ 80 लोग थे जो कि बच गए, और उन्हीं से फिर नस्लें इंसानी आबाद हुई। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही से दीन पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला इस्लाम और ईमान की बरकत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सही से अताअत करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें हर तरह के ज़ाहरी और बातनी फितना और अजाब से महफूज और मामून रखे। आखिरत में हमें अल्लाह ताला आखिरत में हमारे साथ अच्छा मामला फरमाए, हमें अच्छे से अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारा शुमार अपने शुक्रगुजार बंदों में फरमा ले। अल्लाह ताला हमारा शुमार अपने मोमिनीन सादिकीन के साथ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आमीन।